students, how are you? I hope you will be fine at your home. So, in today's lecture, we will see unit number 8 redox reactions. And in today's session, we will learn about the concept of oxidation, concept of reduction, and oxidation number including redox reaction. So first we will see concept of oxidation. So in class 10 we have studied about oxidation and reduction. Okay, so in a very short we have studied these terms oxidation and reduction. So let's start. First see definition. So we can define oxidation in terms of many respect. For example, we can define oxidation in terms of gain or lose of electron. So in terms of electrons, in terms of electronegative elements, electropositive element, in terms of oxygen, hydrogen, and in terms of oxidation number. So first see addition of electron. How can we define oxidation? As addition of oxygen. Addition of oxygen means Mg plus O2. It forms MgO. So this type of reaction where oxygen is adding into some other elements, it is known as oxidation. Addition of electronegative element. You know oxygen, it is electronegative element because oxygen it gains electrons. Like that electronegative element like fluorine, chlorine, these are also gaining electrons. So if we add the species which has tendency to gain electron, then this reaction is also known as oxidation reaction. So the addition of electronegative element Mg plus Cl2. Here you can see magnesium is donating electron, chlorine is gaining electron. So here Mg plus Cl2, it forms MgCl2. So this is also oxidation. In terms of electronegative element, we can define nitrogen. We can use nitrogen, phosphorus, sulfur, then chlorine, fluorine, bromine, iodine. So the electronegative element, if they are added, it is oxidation reaction. Removal of hydrogen. So if here see from HCl, we are removing hydrogen, so the remaining thing will be Cl. So this Cl is undergoing oxidation. Okay, see in first example, addition of oxygen, Mg plus O2, oxygen Mg plus O2. In this reaction, we are adding oxygen into Mg. So magnesium is undergoing oxidation. Okay, magnesium is undergoing oxidation. In second example, magnesium is undergoing oxidation. In HCl, chlorine is undergoing oxidation because from HCl or Cl, hydrogen it is bonded with chlorine. So in this reaction, hydrogen is removing from chlorine. So that's why HCl, this conversion of HCl into H2 plus Cl2, this is also known as oxidation in terms of chlorine. Removal of electropositive element. Hydrogen, it is electropositive element. See in HCl, H plus and Cl minus is there. So if hydrogen is making H plus, so it means NaCl, Na plus Cl minus. So the things are same, Cl, Cl in third and fourth example. Chlorine are same. So only hydrogen is positive, sodium is positive. So removal of electropositive element or removal of hydrogen is known as oxidation. Removal of electron from sodium, if it's sodium, it is converting into Na plus, then this reaction is also known as oxidation. And increase in oxidation number, here see Pb2 plus, it is converting into Pb4 plus. So this is also undergoing oxidation. So we have different terms to define oxidation. So if we combine all these terms, then we can define oxidation reaction as addition of oxygen or electronegative element, because these two are adding. So addition of oxygen or electronegative element, or removal of hydrogen or electropositive element from a substance is called oxidation. Okay, so we can define addition of oxygen or electronegative element and a removal of hydrogen or electropositive element. This is known as
oxidation. In terms of electron, removal of electron is known as oxidation reaction. So in oxidation reactions, we have some examples. S plus O2. See here, sulfur and oxygen, they are reacting to form SO2. So oxygen is adding into sulfur. That's why this sulfur is undergoing oxidation. See, इसको हमको बहुत बिल्कुल थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है इसमें कि जिस भी एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं हम, ओके, इन द एलिमेंट इन विच वी आर गोइंग टू ऐड ऑक्सीजन, दैट एलिमेंट विल अंडरगो ऑक्सीडेशन. ओके, उस एलिमेंट का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा. तो सल्फर में हम ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं तो सल्फर का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन. CH4 प्लस O2, इसमें भी क्या हो रहा है? कार्बन. अब इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को हम डिफाइन कर सकते हैं. कैसे डिफाइन करेंगे? CH4, इसमें से हाइड्रोजन हमने रिमूव कर दिया तो ये हो गया ऑक्सीडेशन. इसमें कार्बन में हमने ऑक्सीजन ऐड कर दिया तो भी ये ऑक्सीडेशन है. तो आप किसी भी टर्म में इसको डिफाइन कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन और इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि दोनों की मीनिंग इसमें सेम निकल रही है. रिमूवल ऑफ इसमें कहते हैं ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो दोनों एक साथ हो रहा है इसमें. H2S प्लस O2, इसमें भी सल्फर से हाइड्रोजन रिमूव कर दिया हमने और सल्फर में ऑक्सीजन, ये सल्फर में से हाइड्रोजन हमने रिमूव कर दिया तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इट इज ऑक्सीडेशन. देन Mg प्लस F2, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दैट इज ऑक्सीडेशन. तो मैग्नीशियम का हो गया ऑक्सीडेशन. इसमें मैग्नीशियम में क्लोरीन में हमने ऐड किया तो मैग्नीशियम का हो गया ऑक्सीडेशन. Mg में सल्फर ऐड किया तो मैग्नीशियम का हो गया ऑक्सीडेशन. और इसमें आप देखना है अब K4FeCN6, इसमें जब इसकी रिएक्शन हम H2O2 के साथ कराते हैं तो इसमें से क्या हो गया? प्रोडक्ट देखना, प्रोडक्ट में कौन कौन है? K4 और K3, मतलब एक पोटेशियम इसमें से निकल गया. पोटेशियम कैसा एलिमेंट है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है. तो ये रिएक्शन कौन सी हो गई? ये रिएक्शन हो गई ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. सो ये हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन. इसमें हमको मेन चीज़ क्या है इस सब बताने का, कि आपको रिएक्शन में पहचानना होगा कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन. तो सिंपल सा देखना है, आप कौन कौन से टर्म्स देखना है हमको, या तो उसमें ऑक्सीजन ऐड होना चाहिए या कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड होना चाहिए, उसमें से हाइड्रोजन रिमूव होना चाहिए या इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट रिमूव होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिमूव होना चाहिए, या फिर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाए +4 से, मतलब पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर. नंबर लाइन आपने देखा है ना, नंबर लाइन में क्या होता है? -0+, तो डायरेक्शन क्या होना चाहिए? -2 0 0 2 प्लस. इस डायरेक्शन में यदि हम जा रहे हैं तो ये ऑक्सीडेशन है, और इसकी रिवर्स डायरेक्शन में जाएंगे तो ये रिडक्शन हो जाएगा. नाउ वी विल सी कंसेप्ट ऑफ रिडक्शन. सो डेफिनेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, सो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन. अब हमको क्या करना है कि जो हमने ऑक्सीडेशन में जितने भी टर्म्स हमने यूज़ किए हैं उन सारे टर्म्स को रिवर्स कर देना है, उनको जस्ट अपोजिट कर देना है. जैसे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन था, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया? रिडक्शन हो गया. रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये क्या हो गया? रिडक्शन हो गया. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन. एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, रिडक्शन. एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया है तो यदि इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो भी ये रिडक्शन है. और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, नंबर लाइन में अब हम रिवर्स जा रहे हैं. नंबर लाइन में रिवर्स क्यों? क्योंकि जब हम +4 से +2 की तरफ जाएंगे, +4 +3 +2 +1 +0, मतलब पॉजिटिव 0 1 -1, तो ये क्या कर रहे हैं? हम नंबर लाइन में रिवर्स जा रहे हैं. तो ये हो गया डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज रिडक्शन. इन सारे टर्म्स को यदि हम ऐड करना चाहें तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्रॉम अ सब्सटेंस और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट टू अ सब्सटेंस इज नोन एज रिडक्शन. इसके बाद, इनके बाद हम देखते हैं अब इसमें कुछ एग्जाम्पल्स. फर्स्ट HGO. HGO में देखो क्या है, इसमें से HGO में से Hg प्लस O2, मतलब ऑक्सीजन हमने इसमें रिमूव कर दिया, सो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन. FeCl3 प्लस H2, ये क्या बन रहा है? FeCl2. इसमें क्या हो रहा है? हमने एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को हमने रिमूव किया है. FeCl3 में क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो FeCl3 ये किस में कन्वर्ट हो गया? FeCl2, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन,
इसलिए ये हो गया रिडक्शन। HgCl2 एंड SnCl2 इन दोनों में देखना है अब हमको कि हमने इसमें क्या ऐड किया और क्या इसमें रिड्यूस किया है। तो देखना SnCl4 इसमें हमको क्या करना है, रिमूवल ऑफ, क्या करना है इसमें, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। HgCl2 इसके 2 मॉलिक्यूल्स यदि हम लेते हैं, HgCl2 के कितने मॉलिक्यूल्स लेना है, 2 मॉलिक्यूल्स, तो ये हो जाएगा HgCl2 और फिर से हो जाएगा HgCl2। तो टोटल दोनों को मिला दें हम तो क्या बन जाएगा, Hg2Cl4। अब इस कंपाउंड को कंपेयर करो, Hg2Cl2 Hg2Cl4, मतलब 2 क्लोरीन इसमें से कम हो गए, तो हमने क्या किया, 2 क्लोरीन इसमें से निकाल दिया है, तो Hg का क्या हो गया, इसमें Hg का रिडक्शन हो गया। तो इस टर्म से हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को डिफाइन करेंगे। अब इसके बाद आता है रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बाद अब हम देखेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। सो रेडॉक्स रिएक्शन मीन्स दोज रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। मतलब अभी तक हमने देखा है कि किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसी एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है, तो अब हमको ऐसी रिएक्शन देखनी है जिसमें एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे एलिमेंट का रिडक्शन होगा। तो देखिए एग्जांपल लेते हैं हम Na प्लस Cl2। Na एंड Cl2 दोनों मिलकर के बनाते हैं NaCl। तो पहले इसमें देखो किसके किसके टर्म में इसको डिफाइन करें, सोडियम का क्या हो रहा है इसमें, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। तो ये पहचानने के लिए ये देखो सोडियम के ऊपर चार्ज कितना है, 0, और NaCl में चार्ज कितना आएगा, Na के ऊपर आएगा प्लस और Cl के ऊपर चार्ज कितना आएगा, ये देखो Na के ऊपर आएगा क्या, क्योंकि NaCl क्या बनाएगा, Na प्लस बनाएगा और Cl माइनस, और यहाँ पर Na के ऊपर चार्ज कितना है, 0, तो 0 से किस में कन्वर्ट हो गया, ये प्लस में, मतलब ये हो गया इसका ऑक्सीडेशन। और क्लोरीन इसके ऊपर भी चार्ज कितना है, 0, तो क्लोरीन किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस में, तो ये हो गया रिडक्शन। ये हम इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में देखें, एडिशन ऑफ क्लोरीन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दिस इज ऑक्सीडेशन। सोडियम का हो गया ऑक्सीडेशन इसमें। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, दिस इज रिडक्शन। तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिडक्शन कर दिया हमने। कुल मिलाकर के हम क्या कर सकते हैं इसमें, अल्टीमेटली किसी भी डेफिनेशन में देखें आप तो सोडियम का क्या होगा इसमें, ऑक्सीडेशन, और क्लोरीन का क्या होगा, रिडक्शन। तो जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं तो उसको हम कहते हैं रेडॉक्स। रेडॉक्स मीन्स रेड ऑक्स, रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। सो दोनों रिएक्शन एक साथ हो गई हैं। Na और S, इसमें देखो सोडियम क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, सो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज ऑक्सीडेशन। गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज रिडक्शन। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन हो गया और सोडियम का रिडक्शन, ये सल्फर का रिडक्शन हो गया और सोडियम का ऑक्सीडेशन। इस टर्म में हम इसको डिफाइन करते हैं। आफ्टर रेडॉक्स, ऑक्सीडेशन नंबर, जो हमारा थर्ड टॉपिक है, थर्ड टॉपिक होगा ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं वैलेंसी की। आपको मालूम है वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी द कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू गेन और डोनेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो ऑक्सीजन बनाता है 2 माइनस, इसका मतलब ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, -2। क्लोरीन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो क्लोरीन की वैलेंसी क्या हो गई, -1। सोडियम क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो सोडियम की वैलेंसी हो गई +1। तो वैलेंसी क्या है, वैलेंसी मतलब कोई भी एलिमेंट या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा है या डोनेट कर रहा है वही उसकी वैलेंसी है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो ऑक्सीडेशन नंबर को भी हम कभी कभी वैलेंसी की जैसा कंसीडर कर सकते हैं, बट डिफरेंस यहाँ ये आता है कि किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी हम ग्रुप की वैलेंसी से चेक करते हैं तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होती रहती है। तो ऑक्सीडेशन नंबर है क्या, ऑक्सीडेशन नंबर डिनोट्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट in a compound ascertained according to a set of rules formulated on the basis that electron pair in a covalent bond belongs entirely to more electronegative element। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर की हम बात कर रहे थे कि ये क्या है कि तो कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, तो कोवेलेंट बॉन्ड बनने में क्या होता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे, बीचों बीच में रहना चाहिए, क्योंकि दोनों ही जो एलिमेंट हैं कि जैसे हम H और Cl की बात करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो कोई भी 2 एलिमेंट लेते हैं, चलो हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ले लिया,
तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। तो ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये किसकी तरफ शिफ्ट कर जाएंगे? ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करेंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर हम इन्हीं शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करके करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ये हम कैलकुलेट करेंगे, बट कैलकुलेट करने से पहले कुछ एक रूल्स हैं। किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स नहीं है, रिमेंबर दिस थिंग। एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स नहीं है, ये हमें कैलकुलेट करना होता है। तो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? फर्स्ट, इन एलिमेंट ईच एटम हैज़ ऑक्सीडेशन नंबर 0। एलिमेंट का मतलब क्या कि यदि हमने रिएक्शन कराते हैं Na+Cl2, तो Na क्या है? एक एटम है, एलिमेंट है, प्योर एलिमेंट है। तो Na यदि प्योर एलिमेंट मिलता है, चाहे वो सिंगल एटम हो और चाहे मॉलिक्यूल हो। मॉलिक्यूल का मतलब क्या? जैसे H2, तो H2 में 2 हाइड्रोजन है पर दोनों क्या है? हाइड्रोजन। तो जब प्योर एलिमेंट होगा तो प्योर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर हम लिखते हैं 0। तो प्योर एलिमेंट कौन कौन से हैं? ये हो गया H2, Cl2, I2, Br2, सोडियम, आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। ये यदि सिंगल एटमिक फॉर्म में है या सिंगल एलिमेंट फॉर्म में है तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 आएगा। फॉर आयंस, अब आयंस कौन से? 2 आयन होते हैं, एक होता है मोनो एटमिक आयन और एक होता है पॉली एटमिक आयन। मोनो एटमिक आयन जैसे Cl-, क्लोरीन सिंगल माइनस बनाता है ना, Cl-, O2-, F-, Br-, Na+, Al3+। तो जो हमारे पास सिंगल एटमिक आयन है, ठीक है, कंसीडर समझ गए ना? इसका मतलब समझ गए कि सिंगल एटमिक आयन, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? तो यदि आयन दिया हुआ है तो उसके ऊपर जो चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं इसको लिखता हूं Al3+, ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? +3। यदि मैंने लिख दिया Cl-, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? -1। यदि मैंने लिख दिया O2-, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? -2। तो जब हमारे पास क्या है, ये सारे में क्या है? सिंगल एटम की बात कर रहे हैं हम, ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं। ग्रुप मतलब ये जैसे SO4 2-, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 नहीं होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालना होगा, क्योंकि इसमें क्या है? सल्फर और ऑक्सीजन दोनों हैं। तो यदि कोई भी एक एटम आयन बनाता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर उसके चार्ज के इक्वल होगा। नेक्स्ट, इन ऑल इट्स कंपाउंड फ्लोरीन हैज ऑक्सीडेशन नंबर -1। फ्लोरीन चाहे कोई भी कंपाउंड बनाए, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 ही होगा। बाकी हैलोजन, तो बाकी हैलोजन के लिए हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये -1 भी बनाते हैं, +1, +3, +5, +7 ये भी बनाते हैं, लेकिन फ्लोरीन सिर्फ और सिर्फ -1 बनाएगा। और जब हम कैलकुलेट करने जाएंगे तो जो जिस एटम के लिए, जिस एलिमेंट के लिए हमको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है, उस एटम को छोड़ करके बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका ऑक्सीडेशन नंबर उनकी वैलेंसी के इक्वल होगा। ठीक है, उनकी नॉर्मल जो वैलेंसी होती है उसी के इक्वल होगा। चलिए इन टर्म्स को देखने, 4 रूल्स हैं, इन चारों रूल्स को याद रखना। हम प्रैक्टिस करते हैं कुछ एक एग्जाम्पल से। फर्स्ट है NaH2PO4, इसमें हमने अंडरलाइन किया हुआ है फास्फोरस। तो फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने का पैटर्न, उसके लिए रूल्स क्या हैं? तो रूल्स ये हैं, सबसे पहले तो देखो फास्फोरस, इसका हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो फास्फोरस को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं, सोडियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा इनकी वैलेंसी के। जैसे सोडियम, सोडियम क्या बनाता है? +1, तो सोडियम की वैलेंसी यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। हाइड्रोजन +1 होगा, ऑक्सीजन -2 होगा। तो इनका जो नॉर्मल वैलेंसी है वही इनका ऑक्सीडेशन नंबर है इस मॉलिक्यूल के केस में। तो इसका पैटर्न क्या रखना है? पैटर्न बहुत सिंपल सा है। पैटर्न ये है, सबसे पहले लिखना है हमको नंबर ऑफ एटम्स इनटू वैलेंसी प्लस फिर से नंबर ऑफ एटम्स इनटू वैलेंसी। तो ये पैटर्न करते जाना है। कब तक? सबसे पहले हम किसके लिए देखेंगे? सोडियम के लिए देखेंगे, फिर हाइड्रोजन के लिए, फास्फोरस का हमें कैलकुलेट करना है, फिर
ऑक्सीजन के लिए। तो इनको हमको करना, देखो नंबर ऑफ एटम्स, सोडियम के नंबर ऑफ एटम कितने हैं 1, ठीक है, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे इसकी वैलेंसी, सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है +1। हाइड्रोजन, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं 2 और हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है +1। ऑक्सीजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं 4 और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है -2। तो ये हमको इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसका पैटर्न ये है, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला में क्या Na सोडियम नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 1, वैलेंसी कितनी +1, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2, वैलेंसी कितना +1। फास्फोरस, तो फास्फोरस कितने हैं 1 फास्फोरस है तो x, यदि P2 होता है तो इसको 2x कर देंगे, ठीक है। ऑक्सीजन नंबर ऑफ एटम्स 4 और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है -2 इक्वल टू, इस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर देखो आप चार्ज दिख रहा है क्या, कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं दिख रहा है तो 0। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 1 + 2 + x - 8, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा x - 5, तो x इक्वल टू हो जाएगा +5। यहां पर फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +5। तो इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, CaO2, इसमें ऑक्सीजन का निकालना है। अब देखो यहाँ पर हमने कहा था ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना है -2, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट यदि हम कैलकुलेट करना जा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट हम उसकी नॉर्मल वैलेंसी के लिए नहीं यूज़ कर सकते। देखो जैसे कैल्शियम, नंबर ऑफ कैल्शियम कितना 1, कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, इसकी वैलेंसी कितनी होती है कैल्शियम की +2, तो 1 × +2 प्लस नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम कितना 2 और ऑक्सीजन के लिए हमको निकालना है तो x, तो ये कितना हो जाएगा 2 + 2x = 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2x = -2, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है -1। अब देखो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2 पर यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है -1। ये मत कहना कि ऑक्सीजन की वैलेंसी -1 होती है, नो, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है, बट यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है -1 आ रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल इज H4P2O7, इसमें फास्फोरस का निकालना है, तो पैटर्न 4 हाइड्रोजन है, 4 × +1 कर देंगे, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स 4, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज +1। इन द सेम वे 2x + 7 - 2, ये हो जाएगा 4 + 2x - 14, 2x इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 2x - 10 और x की वैल्यू कितना हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी +5। तो फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया +5। नेक्स्ट एग्जांपल K2MnO4, तो इसमें देखते जाओ आप, इन एग्जांपल्स को देखते जाइए और ये कहीं पर यदि डाउट होता है, पैटर्न सेम है। पैटर्न क्या है, नंबर ऑफ एटम इनटू वैलेंसी, जिसके लिए आप कैलकुलेट करने जा रहे हैं उसको x मानना है, ठीक है, इट इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 2 + x - 8 = 0। तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा हमें, फाइनल आंसर मिलेगा x = +6। तो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई +6। इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं। सो नाउ वी हैव सम मोर एग्जांपल्स एंड यू कैन सी हाउ द वैलेंसी चेंजेस। सो ये हो जाएगा +1 1 1 + x - 8 x - 6 इट इज इक्वल टू +6। तो सल्फर की वैलेंसी हो गई +6। देन NaBH4, इसके लिए तो आपको पैटर्न सेम रखना है। पैटर्न क्या कि आपको पहले नंबर ऑफ एटम इनटू नॉर्मल वैलेंसी, जिसके लिए आप कैलकुलेट करने जा रहे हैं उसका x, और बाकी के लिए आपको नॉर्मल वैलेंसी, उसके बाद फिर इसको इक्वल कर देना है। तो इस तरीके से आप, वी हैव सम मोर एग्जांपल्स एंड यू कैन सॉल्व दिस न्यूमेरिकल्स, दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई कि ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी, यदि आप ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो सकता है, वैलेंसी चेंज यहाँ पर नहीं होगी। यदि वैलेंसी चेंज होती है तो वो सम स्पेशल केस में होती है, बाकी ऑक्सीडेशन नंबर आपको क्लियर रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। चलिए अब इसके बाद अब हमको देखना है एक चीज़ और देखना, मैं थोड़ा सा इसमें ये लास्ट वाले एग्जाम्पल में देखना चाहूँगा,
पोटेशियम क्या है 1 ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसका वैलेंसी हो गया +1। नंबर ऑफ एल्यूमिनियम 1, इसका वैलेंसी हो गया +3। सल्फर, इसको हमने 2x क्यों लिखा, क्योंकि SO4 होल ट्वाइस है, होल ट्वाइस का मतलब क्या डबल, तो सल्फर कितना हो गया 2 सल्फर, ऑक्सीजन कितना हो गया 8, इसलिए हमने नंबर ऑफ एटम्स 2 and 8 लिखा है। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये हो गया हमारे पास एग्जाम्पल्स। आफ्टर दिस एग्जाम्पल्स अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। सो क्लास 10 में आपने पढ़ा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इन्हीं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को और जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन है इनको यदि हम रेडॉक्स रिएक्शन के टर्म्स में देखें तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट ये हो जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसका कॉमन फॉर्मूला क्या है, A + B = C, क्योंकि कॉम्बिनेशन में सीधा सा है, दो एलिमेंट मिलेंगे, दोनों एलिमेंट क्या होगा इसका मिलकर के एक एलिमेंट बनाएंगे। तो यहाँ ये देखना है कि रेडॉक्स रिएक्शन इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो इसमें देखना है A का होगा ऑक्सीडेशन और B का होगा रिडक्शन। फॉर एग्जांपल C + O2, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुआ तो कार्बन का क्या हो गया ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन का क्या होगा, फिर ऑक्सीजन का होगा रिडक्शन। रिमेंबर दिस थिंग, किसी भी रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन या सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन नहीं मिलेगी, किसी भी रिएक्शन में दोनों रिएक्शन एक साथ मिलेगा, मतलब एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा और एक एलिमेंट का रिडक्शन होगा। तो यदि कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीजन का क्या होगा रिडक्शन। देखो कार्बन के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकालते हैं, यदि प्योर एलिमेंट है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, कार्बन का 0 हो गया। O2 है तो ये ऑक्सीजन ही, तो इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0। फिर कार्बन के लिए +4 और -2, तो कार्बन क्या हो रहा है 0 से +4, मतलब ये हो गया इसका ऑक्सीडेशन, 0 से -2 मतलब ये हो गया रिडक्शन। नंबर लाइन याद रखना, नंबर लाइन में क्या करना हमको, लेफ्ट टू राइट क्या होगा ऑक्सीडेशन, और राइट टू लेफ्ट ये होगा रिडक्शन, मतलब सीधे माइनस से प्लस हो रहा है तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन है, और प्लस से माइनस हो रहा है तो रिडक्शन है। तो ये हो गया हमारे पास। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं Mg + N2, तो ये दोनों रिएक्शन करके बनाते हैं Mg3N2। नाइट्रोजन कैसा है इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, मतलब Mg क्या करेगा प्लस बनाएगा, तो Mg का पहले ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो 0, नाइट्रोजन का 0, यहाँ Mg +2 बना रहा है, नाइट्रोजन -3, तो यहाँ पर क्या हो गया इसका इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और ये हो गया डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन और इसका हो गया रिडक्शन। तो ये है रेडॉक्स रिएक्शन। तो और ये दोनों किसके एग्जांपल है, देखो दो एलिमेंट दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं सिर्फ एक एलिमेंट, तो ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आफ्टर कॉम्बिनेशन रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, जस्ट इसका रिवर्स कर देते हैं, एक इसमें कन्वर्ट होगा B, C, D एंड सो ऑन, मोर देन वन सब्सटेंस में डिकम्पोज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल KClO3, ये किस में डिकम्पोज हो रहा है KCl और O2, तो ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, इसमें पोटेशियम +1, क्लोरीन +5 से -1, तो देखो +5 से -1 मतलब इसका क्या हो रहा है, +5 से क्या हो रहा है -1, और ये क्या हो रहा है -2 से 0, तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन और इसका हो गया रिडक्शन। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ है, इसके लिए आप क्लोरीन के लिए आप ऑक्सीडेशन नंबर अभी जो हमने प्रैक्टिस किया उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रिडक्शन और ऑक्सीजन दोनों एक साथ है, इसलिए हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। H2O किस में डिकम्पोज हो रहा है H2 + O2 में, तो वाटर का यहाँ पर डिकम्पोजिशन हो गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो इसका क्या होगा ऑक्सीडेशन है रिडक्शन। तो अब देखो हाइड्रोजन क्या बनाता है -1, ऑक्सीजन क्या बनाता है 0 -2, यहाँ 0 0, तो ये हो गया, देखो रिएक्शन दिख रही है, एक का हो गया ऑक्सीडेशन एक का हो गया रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को आपको डेफिनेशन क्लियर रखना है। आफ्टर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट अब हम देखेंगे थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या देखना है हमको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल लेंगे हम, और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल क्या है X + YZ
इट इज इक्वल टू एक्स जेड प्लस वाई। एक्स ने क्या किया है, वाई को रिप्लेस कर दिया है। इसका पहला कैटेगरी होती है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें मेटल कौन डिस्प्लेसमेंट किसका होगा, मेटल का। ठीक है, चलिए देखते हैं हम कैसे कि मेटल डिस्प्लेस करेगी। CuSO4 प्लस जिंक, इट फॉर्म्स Cu प्लस ZnSO4, ये हमने 10th में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर कॉपर का क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। किसने डिस्प्लेस किया कॉपर को, जिंक ने। तो मेटल के बीच डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखो आप, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +2, ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, सल्फर का कितना है, +6, जिंक का है 0, कॉपर का हो गया 0। तो अब यहाँ पर आप कंपेयर करो कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन। कॉपर का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। जिंक का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ये देखो ऑक्सीजन, ये सल्फर और सल्फर, यहाँ पर कोई चेंज नहीं है। तो किसका किसका ऑक्सीडेशन हुआ, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर जिंक का, और कॉपर का हो रहा है रिडक्शन। तो जहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ मिलेगी वही तो रेडॉक्स रिएक्शन है। तो ये हो गया हमारे पास एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। किसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मेटल डिस्प्लेस कर रही है मेटल को। ठीक है, सेकंड कैटेगरी मिलेगी नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। तो नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट के एक एग्जांपल है Na प्लस H2O, इट फॉर्म्स NaOH प्लस H2। अब देखो सोडियम क्या कर रहा है, वाटर में क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों हैं। तो वाटर में से क्या है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, देखो स्ट्रक्चर क्या है इसका, अपन स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले। HOH, ये है H2O। इस H2O में इस हाइड्रोजन की जगह कौन आ गया, Na आ गया है। तो ये क्या बन गया, NaOH। तो NaOH में क्या किया, सोडियम ने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है। और जब हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है तो किसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, नॉन मेटल का। सो दिस इज नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। ऑक्सीडेशन नंबर देखो, सोडियम का है 0, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2, सोडियम +1 एंड सो ऑन। तो इन सब में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन। सोडियम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। सोडियम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और हाइड्रोजन का क्या हो गया, हाइड्रोजन का हो गया रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ है, इसलिए हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन। और इसके बाद फिर लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है, ये होती है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इसको बहुत अच्छे से समझना, ये आपके लिए थोड़ा सा नया है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब ये है कि किसी एक रिएक्शन में एक एलिमेंट, किसी भी एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। क्या होगा, एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। तो देखते हैं जैसे H2O2 में सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन नंबर काउंट कीजिए। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन नंबर देखो किसका किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। हाइड्रोजन +1 से +1, क्या कोई चेंज आया, नहीं, तो इसका तो कोई रिएक्शन नहीं हो रही। ऑक्सीजन किस में चेंज हो गया, -1 से किस में चेंज हो रहा है, -1 से किस में चेंज हो रहा है, -2। तो ये हो गया क्या, इसका रिडक्शन। ये क्या हो गया, रिडक्शन। और यहीं पर ऑक्सीजन में ही देखो क्या हो रहा है, -1 से क्या हो रहा है, 0, तो इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर एक अकेला एलिमेंट ऐसा है ऑक्सीजन जिसका ऑक्सीडेशन भी हुआ और इसका रिडक्शन भी हुआ। तो ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन, या सिंपली डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। सो सिंपल, this disproportionation reaction, this is a reaction in which one element undergoes oxidation as well as reduction. This is known as disproportionation reaction. Okay, some more example of disproportionation reaction, ये है NO2 plus OH minus। यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनाते हैं NO2 minus, NO3 minus and H2। तो सबसे पहले इन सबका ऑक्सीडेशन नंबर हम कैलकुलेट करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के बाद आप देखना किसका किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। सबसे पहले नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन किस में चेंज हुआ, नाइट्रोजन +3 में चेंज हो रहा है और नाइट्रोजन +5 में चेंज हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन -2, यहाँ पर भी -2 है, यहाँ पर भी -2 है,
यहाँ पर भी -2, तो ऑक्सीजन में तो कोई चेंज नहीं आया। हाइड्रोजन यहाँ पर भी +1 है, यहाँ पर भी +1 है, इसमें भी कोई चेंज नहीं आया। तो सिर्फ चेंज किस में आ रहा है? नाइट्रोजन में। नाइट्रोजन क्या बना रहा है? +4 से क्या बनाया? +3, और +4 से क्या बना रहा है? +5। तो नंबर लाइन की यदि हम बात करें, नंबर लाइन में क्या होता है? -3, सॉरी +3, +4 एंड +5। तो नाइट्रोजन यहाँ पर है। अभी एक बार क्या हो रहा है इसका? ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये हो गया रिडक्शन। और दूसरी बार क्या हो रहा है? इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये हो गया इसका ऑक्सीडेशन। तो नाइट्रोजन का ही ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी, तो ये हो गया डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ओके, मोर एग्जांपल इज देयर। नाउ यू कैन फाइंड द एलिमेंट विच इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। तो यहाँ ऑक्सीजन में कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ क्लोरीन में चेंज आ रहा है, +5 से -1 और +5 से +7। तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच। इफ यू हैव डाउट you can contact me. Okay, thank you.